Classification of algae proposed by Frisch. अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है, लेकिन यहाँ पे हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो सिर्फ हम F.E. फ्रिश के क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे जो क्राइटेरियाज थे उनके ऊपर काम हुआ। इनमें से जो मेन हमारे कैरेक्टर्स आते हैं एल्गी के अंदर वो हैं आपके डाइवर्स टाइप ऑफ पिगमेंट्स, देन डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल्स, देन different type of the flagella. So on the basis of these morphological and physiological differences, algae was classified by many scientists. But the first and well accepted classification of the algae was proposed by F.E. Frisch in the year 1935, and time to time he modified that also. He published his classification in his book entitled The Structure and Reproduction of Algae. He classified algae into the 11 classes on the basis of some criterias, and these criterias were: first, thallus structure, then second is chemical nature of pigments, third is nature of reserve food materials, fourth was number and mode of attachment of flagella in the motile cells, and the last one was mode of reproduction and variation in the life cycles. So these are the 11 classes: Chlorophyceae, Xanthophyceae, Chrysophyceae, Basilariosphyceae, commonly called your diatoms, then Cryptophyceae, Dinophyceae, Chloromonodini, Euglenidae, then Phaeophyceae, Rhodophyceae, and the last one is Mixophyceae, also called your Cyanophyceae. So now one by one we will take these classes and their characters. First class is Chlorophyceae, which is commonly called green algae. This algae occurs in the fresh water, but a few species और a few members are marine too. इस algae में जो main pigments हैं that is chlorophyll A, chlorophyll V, then carotenoids and xanthophylls. Here the reserve food material is starch. Then regarding structure, these forms are unicellular motile to heterotrichous filamentous, and cell wall is made up of cellulose. Pyrenoids are commonly surrounded by the starch sheath. Then motile cells have equal flagella whose number can be 2 to 4. Reproduction. Sexual reproduction ranges from isogamous, anisogamous to oogamous types. So isogamous is the where both the male and the female gametes are similar morphologically as well as physiologically, and this is the most primitive type of sexual reproduction. And the last is the oogamous, that is the most advanced one. And the members of Chlorophyceae, some examples are Chlamydomonas, Volvox, Chlorella, Spirogyra, Oedogonium, Eulothrix. Then these are the orders, we will not focus over here. Then the second class is Xanthophyceae, commonly called yellow green algae. Occurrence कहाँ पे मिलेगी आपको ये algae? तो most of the forms are fresh water
but here also a few members are marine. पिगमेंटेशन रहेगी यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स. और यहाँ पे जो येलो जेंथोफिल है दैट इज़ दी in the abundance, that's why earlier we have said that it is yellow green. रिजर्व फूड मटेरियल है यहाँ पे ऑयल. स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर मोटाइल टू सिंपल फिलामेंटस. सेल वॉल दैट इज रिच इन द पैक्टिक कंपाउंड्स. मोटाइल सेल्स दे आर हैविंग टू अनइक्वल फ्लैजिला. शॉर्टर जो स्मॉलर फ्लैजिला होगा, द शॉर्टर फ्लैजिला होगा दैट इज ऑफ द बिपलेस टाइप, मीन दैट इज द स्मूथ टाइप, वाइल द लॉन्गर फ्लैजिला इज टिनसेल, मीन्स उसके ऊपर थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे. पारिनोइड्स विल बी एब्सेंट. एंड रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज रेयर, एंड वेन एवर इट विल बी प्रेजेंट देन इट विल बी ऑफ द प्रिमिटिव टाइप, दैट इज योर isogamous type. Examples are Bucheria and Botridium. Then third class is Chrysophyceae. तो यहाँ भी हम सबसे पहले इसकी occurrence के बारे में पढ़ते हैं. तो majority of the forms occur in the cold fresh water, but a few are marine also. Then the pigmentations. Chromatophores are brown or orange in color, and the main chief accessory pigment जो होगा यहाँ पे that the phycochrysine, जो यहाँ पे इसको एक specific color देगा that is the brown or orange color. That's why Chrysophyceae को हम simply या commonly हम brown और orange algae बोल देंगे. Then the reserve food यहाँ पे इसी की क्लास के नाम के ऊपर है that is the Chrysolamellarine and the leucosin. Then come to the structure part. Here plant body is unicellular motile to branched filamentous. Flagella, they will be two, can be equal or unequal in size, but they are located or they are inserted anteriorly. यहाँ पे वो लगे होंगे. The cells commonly contain one or two parietal chromatophores. जो पिगमेंट इनके जो होते हैं एल्गी के अंदर, तो उनका ये यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर ये स्ट्रक्चर के ऊपर दे रखा है इनका. देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्डम अकर्स, लेकिन वेन एवर इट विल बी देयर इट विल बी अगेन आइसोगैमस टाइप. एग्जाम्पल्स आते हैं इस एल्गी के अंदर दैट इज Chrysodendron and then Cres amoeba. Next class is very important class that is Basileophyceae, which is commonly called diatoms. या जिनको हम बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है दैट इज दे आर कॉल्ड द जेवल्स ऑफ द प्लांट किंगडम और द जेवल्स ऑफ द ओशंस. और कलर के ऊपर बात करें तो येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी. अक्रेंस होगी इन ऑल काइंड ऑफ फ्रेश वाटर्स, सी, सॉयल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दैट इज द लैंड कंडीशंस. पिगमेंट्स होंगे यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स विल बी येलो और गोल्डन ब्राउन, बट द मेन डोमिनेटिंग पिगमेंट्स आर फ्यूकोजेंथिन, डाइएटोजेंथिन and diadenogenthin, and because of these pigments the diatoms get the characteristic golden brown color. Reserve food material यहाँ पे होगा fats and volatile. स्ट्रक्चर की बात करें तो all the members are unicellular or colonial. Cell wall that is partially composed of silica and partially made up of the pectic materials. It consists of two halves and each has two or more pieces. जिसको हम सोप केस लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. एक एपिथिका, एक हाइपोथिका, टू हाफ्स होते हैं.
and cell wall is highly or richly ornamental. That's why they were called the jewels. Motile cells have single flagellum. एक ही फ्लैजिला होगा यहाँ पे. रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द फॉर्म्स हैं दे आर डिप्लॉयड. 2n नंबर विल बी देयर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशल स्पोर्स के थ्रू होती है. दैट इज़ योर ऑक्सोस्पोर्स जो आपको इसी एल्गी के अंदर मिल रहे हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ द स्पेशल टाइप which occurs by the fusion of protoplast of the ordinary individuals, and the sexual reproduction ranges from isogamous to anisogamous type. इस क्लास को आगे दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज द सेंट्रेल्स एंड पीनेल्स, जिसमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोटेला, और पीनेल्स में एग्जाम्पल है नेविक्यूला, पिनुलेरिया एट्सेट्रा. The next class is Cryptophyceae. Occurrence, so it occurs in both marine as well as in the fresh water. Pigments, बहुत variety of pigment है, diverse pigmentation will be there, but the dominating pigment which gives the brown or red color to this algae, that is xanthophyll. Reserve food material होगा यहाँ पे solid carbohydrate, but in some cases starch or oil. Structure represented by the motile cells, and the most advanced forms are coccoid forms. Flagella यहाँ पे थोड़ा सा slightly unequal. Flagella का नंबर जो है वो यहाँ पे 2 रहेगा. एंटीरियरली वो अटैच्ड होंगे. रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ आइसोगैमस कंडीशन ही रिपोर्ट की गई है, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ क्रिप्टोमोनास, टेट्रागोनिडियम, रोडोमोनास. नेक्स्ट क्लास इज डाइनोफाइसी, दैट इज़ डार्क येलो और ब्राउन एल्गी. ये सारा इनके कलर्स के ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इनमें बहुत सारे पिगमेंटेशन, इनके कलर से ही इनकी क्लासेस की नेमिंग में हेल्प मिली है. तो ये एल्गी कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वाइडली प्रेजेंट इन द सी वाटर एज प्लैंक्टॉन्स, जो फ्री फ्लोटिंग, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन्स के ओशंस में या वाटर बॉडीज़ में. बट ए फ्यू फॉर्म्स आर फ्रेश वाटर आल्सो. पिगमेंट्स हैं यहाँ पे chromatophores, they are dark yellow or brown in color. जो डोमिनेटिंग पिगमेंट है यहाँ पे वो होगा आपका पेरिडाइनिन, जो जेंथोफिल्स के अंडर आता है, एंड गिव द स्पेसिफिक कलर टू दिस एल्गी, दैट इज ब्राउन और रेड कलर. रिजर्व फूड है यहाँ पे स्टार्च एंड फैट. स्ट्रक्चर, प्लांट्स आर यूनिसेलुलर मोटाइल to branched filamentous with 2 flagella. Reproduction, that is of isogamous type, which is rare and not very definite, but the member of this algae also multiply by cell division. इसमें examples हैं Dinophyces, Peridinium, Dinothrix, Desmocapsa. Then the 7th class is Chloromonodyne. Members are present as freshwater forms. Pigmentations, that is chromatophores, are of bright green in color. They again contain excess of xanthophyll. Reserve food material यहाँ है फैट एंड ऑयल्स. और प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट होगा मोटाइल, फ्लैजिलेट with almost 2 equal flagella. Reproduction, so sexual reproduction is absent here, and they multiply only by the longitudinal division of cells. यहाँ पे जो examples हैं that is Becularia and Trentonia. Next class is our Euglene. Occurrence, they are freshwater forms. Pigments, main pigment is chlorophyll, and each cell has several chromatophores with pure green in color.
रिजर्व फूड है यहाँ पे दैट इज़ द पैरामाइलॉन विच इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड. स्ट्रक्चर मोटाइल फ्लैजिलेट, फ्लैजिला नंबर मे बी 1 और 2. कहाँ से अराइज होते हैं? दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ कैनल लाइक invagination from the anterior end. These algae possesses a complex vacuolar system, nucleus that is large and well defined or prominent. Sexual reproduction is not substantially known, but it is again will be of isogamous type, and the example is your Euglena. Then next class is Phaeophyceae, which is commonly called a brown algae. जेंट साइज़ की एल्गीज होती हैं इसमें काफ़ी सारी, जिनको हम कैल्प्स बोलते हैं. तो दे आर मोस्टली एग्जिस्टिंग इन द मैरीन वाटर. पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरेटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स. और इनमें जो मेन प्रिंसिपल डोमिनेटिंग पिगमेंट है दैट इज़ फ्यूकोजैंथिन, विच गिव द कैरेक्टरिस्टिक brown color to this algae. Reserve food material is here mannitol as well as lamellarine and fats. Structure की बात करें तो plants may be simple filamentous to bulky parenchymatous forms, and some plants or the several plant attain the giant size जिनको हम कैल्प्स बोलते हैं यहाँ पे, with external and internal differentiations. थोड़ा सा सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस टू ऊगैमस. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म से लेकर एडवांस टाइप की रिप्रोडक्शन मिलेगी. मोटाइल गैमेट्स हैव 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला. तो यहाँ पे फ्लैजिला साइड में लगा होगा. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो भी यहाँ पे मिलेंगी. इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं दैट इज़ Ectocarpus, Sargassum, Laminaria, Fucus. Then the next class is Rhodophyceae, that is red algae. Few forms are existing in the fresh water, but others are in the marine water or in the sea water. Pigments, chromatophores are red blue. और जो यहाँ पे मेन प्रिंसिपल जो हैं, जो पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं दैट इज़ आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोअरिथ्रिन. आर स्टैंड्स फॉर अवर रोडोफाइसी. तो रेड कलर के लिए यहाँ पे रेड फाइकोअरिथ्रिन, और जो ब्लू अपीयरेंस है दैट इज़ दी बिकॉज द पिगमेंट फाइकोसाइनिन इन स्पाइट ऑफ द क्लोरोफिल ए, डी एंड द कैरेटिनॉइड्स. एंड द वन स्पेशल फीचर ऑफ द रेड एल्गी इज दैट its pigment can absorb light at very depth, means beyond even 200 meters depth in the sea, where other pigment fail to photosynthesize. In those conditions, the red algae can go for photosynthesis. So this is the specialty of these pigments. Reserve food material जो है यहाँ पे वो एक स्पेशल टाइप की स्टार्च है दैट इज़ द फ्लोरिडिन स्टार्च. स्ट्रक्चर सिंपल फिलामेंटस टू अटेनिंग कॉन्सिडरेबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अचीव करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल मेंबर इज़ हैविंग द मोटिलिटी स्ट्रक्चर और द मोटाइल स्ट्रक्चर द फ्लैजिला इन एनी लाइफ फॉर्म. रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे सबसे एडवांस टाइप की रिप्रोडक्शन है दैट इज़ द ऊगैमस टाइप. मेल ऑर्गन प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमेट्स and the female organ has long receptive nap, and after sexual reproduction a special type of spores are formed here जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्पोस्पोर्स. ठीक है, तो हमने एक पहले ऑक्सोस्पोर पढ़ा था बेसिलियोफाइसी के अंदर, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कार्पोस्पोर. कार्पोस्पोरोफाइट पेरा बनाते हैं. तो प्लांट बॉडी में 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं वो बनते हैं. और इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे दैट इज़ दी बट्रैकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, जो आगे हम अपने सिलेबस में डिटेल में भी पढ़ेंगे. एंड द लास्ट क्लास इज़ मिक्सोफाइसी, कॉमनली कॉल्ड और साइनोफाइसी और द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. रिगार्डिंग अक्रेंस दे आर फाउंड इन द सी एंड फ्रेश वाटर. पिगमेंट्स हैं यहाँ पे क्लोरोफिल्स, कैरेटिनॉइड्स,
जैंथोफिल्स, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक पिगमेंट्स हैं तो यहाँ पे हम साइनोफाइसी की वैसे लिख देते हैं आगे सी, तो दैट इज़ सी फाइकोसाइनिन एंड सॉरी यहाँ पे आर आएगा तो दैट इज़ आर फाइकोअरिथ्रिन। यही सेम पिगमेंट जो हैं वो हमने रेड एल्गी में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे हम यहाँ पे जो लिख देते हैं दैट सॉरी यहाँ पे सी ही रहेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइनोफाइसी। तो सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोअरिथ्रिन, तो सी स्टैंड्स फॉर साइनोफाइसी। रेड एल्गी के केस में आर आता था हमारा। द रेशो ऑफ द लास्ट टू पिगमेंट एग्जिबिट कलर वेरिएशन, तो इनका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी दैट विल डिटरमाइन देयर अपीयरेंस। रिजर्व फूड मटेरियल क्लास के नाम के ऊपर ही है, दैट इज द साइनोफाइसियन स्टार्च और द साइनोफाइसियन प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल टाइप ऑफ सेल टू फिलामेंटस, एंड सम ऑफ द फिलामेंटस फॉर्म शो फॉल्स और ट्रू ब्रांचिंग। अब इन सारी फॉर्म्स को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज एब्सेंट। नो प्रॉपर क्रोमेटोफोर्स, या जो पिगमेंटेशन है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, they are in the diffuse form in the peripheral regions, and no motile stage is discovered here also. And reproduction, so there will be no sexual reproduction, and the examples under this is Oscillatoria nostoc, जिनको हम जो है बायो फर्टिलाइजर्स में भी पढ़ते हैं, जब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।